سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قدیمی دشمن کون تھا؟ جواب: شیطان دشمن تھا۔ سوال: کون سا جانور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ بنا؟ جواب: اونٹنی۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ صبر کا پیکر کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ سوال: پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے؟ جواب: چنبیلی۔ سوال: سحری کے وقت کیا چیز ضرور پینی چاہیے؟ جواب: پانی، تاکہ پیاس نہ لگے۔ سوال: کس نبی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جواب: نیت اور دل کی حاضری۔ سوال: حج کرنے والے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ جواب: کراچی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کیا تھی؟ جواب: کھجور اور پانی۔ سوال: جمعہ کے دن کون سی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الکہف۔ سوال: سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے اور کہاں شہید کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ سوال: قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو معلوم نہ تھا کہ لاش کو کیا کرے، وہ کتنے دنوں تک لاش لیے گھومتا رہا؟ جواب: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو 40 دنوں تک تھیلے میں لے کر گھومتا رہا۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے؟ جواب: عربی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب: بے صبری۔ سوال: کیا چیز مسلمان اور کافر میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: نماز سے پہلے کون سی 7 چیزیں ضروری ہیں؟ جواب: وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ سوال: شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ جواب: شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے، البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیر سزا دے سکتی ہے۔ سوال: کن 3 چیزوں کو سنبھال کر رکھنے سے پچھتائیں گے نہیں؟ جواب: 3 چیزیں سنبھال کر رکھے، راز، زبان اور حیا، کبھی نہیں پچھتائیں گے۔ سوال: کون سی چیز پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟
जवाब, शराब पीने वाली औरत। सवाल, क्या एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? जवाब, नहीं लग सकती। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब, बुराइयों की मां। सवाल, क्या इस्लाम में मर्द का टई बांधना जायज है? जवाब, जायज है। सवाल, अल्लाह ताला की नजर में सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब, अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला। सवाल, सबसे पहले किस नबी को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल, दौलत के अलावा और कौन सी चीज रिज्क में शामिल है? जवाब, नेक औलाद। सवाल, वो कौन सा अमल है जो गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देती है? जवाब, अच्छे इखलाक। सवाल, हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? जवाब, सूरत बकरा का। सवाल, कौन सा अमल करने वाले का मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब, सदका देना। सवाल, बताइए वो कौन सी तीन चीजें हैं जो गुनाहों की बुनियाद है? जवाब, नंबर 1 तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। नंबर 2 हिर्स, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया। नंबर 3 हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। सवाल, कौन सी एक आदत है जिस इंसान में हो वो हमेशा गम में मुब्तला रहता है? जवाब, वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है। सवाल, कौन सा गुनाह करने से लड़कियां जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं? जवाब, माँ के साथ बदसलूकी करने की वजह से। सवाल, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसके पास हो वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है? जवाब, शुक्र करने वाली जबान, जिक्र करने वाला दिल, मुशक्कत मेहनत उठाने वाला इंसान, नेक बीवी, सहूलत की रोजी। सवाल, दज्जाल के पास कैसा पानी होगा? जवाब, हजरत हुजैफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब निकलेगा तो उसके पास पानी और आग होंगे, जिससे लोग पानी समझेंगे वो दर हकीकत जलाने वाली आग होगी, और जिसे लोग आग समझेंगे दर हकीकत वो ठंडा शीरी पानी होगा। लिहाजा तुम में से जो कोई वो मौका पाए तो उसे चाहिए कि वो आग में कूद पड़े, क्योंकि वो मीठा और पाकीज़ा पानी होगा। उसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल, कौन सा अमल इंसान की उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला उसके जरिए तकब्बुर और फख्र की बीमारियों को ज़ैल करता है। सवाल, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने किस गुनाह को जुल्म अजीम करार दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल, बताइए कि जहरी नमाज किसे कहा जाता है? जवाब, वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। सवाल, खवातीन के लिए ज़ैबो जीनत छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, सूरत अहज़ाब में। सवाल, बताइए कि रब्बी ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत मुबारका का हिस्सा है? जवाब, सूरत ताहा। सवाल, 15 शोबान से पहले कौन सा काम करने वाला इंसान हमेशा के लिए गरीब हो जाता है?
जवाब, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला के फजल करम से शोबान का महीना शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पर के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर आजकल बहुत ऐसी वीडियोस गर्दिश करती नजर आ रही हैं कि जिनमें ये बताया जाता है कि शोबान के महीने में फला काम करने से कोई मुसीबत आ जाती है या फला काम करने से इंसान हमेशा के लिए गरीब हो जाता है वगैरह वगैरह, जबकि ये सब जाहिलाना अकायद हैं। रिवायत में ऐसा कुछ भी कहीं नहीं मिलता। माह शबान इबादत के हवाले से इंतहाई अहम महीना है, लिहाजा इसमें खूब इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करें। सवाल, कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे। सवाल, नमाज के लिए वुजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब, सूरतुल माइदा में। सवाल, अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्तों हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए? जवाब, अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्तों हो तो उसको मोहलत दो और अगर हो सके तो उसको माफ कर दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्त तुम समझो। सवाल, किसकी दुआ फरिश्तों की मानद होती है? जवाब, मरीज की। सवाल, हदीस के मुताबिक सदका दिन में किस वक्त देना चाहिए? जवाब, फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुबह सवेरे सदका दिया करो क्योंकि मुसीबत सदका से सबकत नहीं ले जा सकती है। सवाल, वो कौन सी सब्जी है जिसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन के बर्तन में तलाश करके खाते थे? जवाब, कद्दू। सवाल, वो कौन सा मजहब है जो दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है? जवाब, इस्लाम। सवाल, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जवाब, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। सवाल, कुरान मजीद में बेहतरीन मशरूब किसे कहा गया है? जवाब, दूध को। सवाल, नाखून टूट जाए तो सदका देना क्यों जरूरी हो जाता है? जवाब, नाखून खतरनाक जिस्मानी बीमारी, नजर बद और जादू वगैरह की वजह से भी टूट जाते हैं, लिहाजा जब भी नाखून टूटे तो सदका लाजमी दिया करें और जिक्र इज़कार के जरिए अल्लाह की पनाह मांगा करें। सवाल, क़यामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज की रोशनी जैसा होगा? जवाब, फुकरा मुहाजिरीन का। सवाल, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब, हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल, सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब, नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल, कुरान पाक में कौन सी सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई? जवाब, सूरत फलक, सूरत नास। सवाल, वो कौन सा मुसलमान है जो जिस तरफ चाहे मुंह करके नमाज पढ़ सकता है? जवाब, वो मुसलमान जिसको खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वो जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज अदा कर सकता है। सवाल, बताएं हुस्न में कौन सा पैगंबर मशहूर है? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में कुरान पाक को अजीम कहा गया है? जवाब, सूरत हिज्र में। सवाल, खत्म नबुवत का जिक्र किस सूरत में आया है?
जवाब सूरत अल-अहज़ाब में। सवाल सूरत मुल्क किस चीज से बचाएगी? जवाब अज़ाब कब्र से। सवाल फरिश्ते कौन सी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं? जवाब फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़े है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में किस चीज पर सवार होकर आएंगे? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में बुराक पर सवार होकर आएंगे और बतौर एजाज 70,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। सवाल तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? जवाब 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। सवाल कुरान की माँ किस सूरत को कहा गया है? जवाब सूरत फातिहा को कुरान की माँ कहा गया है। सवाल घर में कौन सा अमल करने वाले के जिस्म में शैतान दाखिल हो जाता है? जवाब बाथरूम में रोना। बाथरूम में रोना शैतान को दावत देना, लिहाजा इस काम से गुरेज करें और बाथरूम को रोजाना साफ सुथरा रखें। रात को बाथरूम साफ करके सोने से भी शैतान घर से दूर रहते हैं। सवाल वो कौन सी मिठाई है जिसे खाना मुसलमानों के लिए हराम है? जवाब इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसे खाना या कबूल करना हराम है और उस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना नाजायज है। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहे थे? जवाब 3 दिन और रात। सवाल सबसे पहले जहन्नुम में किसको डाला जाएगा? जवाब काबिल को। सवाल कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में है? जवाब 9वें पारे में। सवाल हदीस के मुताबिक कौन सा रंग देखने से नजर तेज होती है? जवाब सब्ज रंग देखने से। सवाल किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब नमाज को। सवाल सबसे पहले किस नबी की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। सवाल किस तरह खाना खाने से खाना मकरूह होता है? जवाब ज्यादा गर्म खाने से। सवाल खाना काबा का दरवाजा कितने किलोग्राम सोने से बनाया गया है? जवाब 280 किलोग्राम। सवाल वो कौन से मुसलमान है जिसका नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब जिसने अपने वालिदैन को कत्ल किया हो। सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले किस मखलूक से हिसाब लिया जाएगा? जवाब फरिश्तों से। सवाल कौन सा अमल करने से मोमिन के दिल को सुकून पहुंचता है? जवाब अल्लाह का जिक्र करने से। सवाल किस मुसलमान का जूठा पीना हराम है? जवाब शराबी का पीना। सवाल कौन सी मिट्टी जिस्म पर लगने से फरिश्ते दुआ करते हैं? जवाब सजदे की मिट्टी। सवाल नमाज में सुस्ती करने वाला क़यामत के दिन किस जानवर की शक्ल में होगा? जवाब सूर की शक्ल में। सवाल औरत के जिस्म के किस हिस्से पर निशान पड़ जाना जादू की अलामत है?
जवाब नाखून में। सवाल कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? जवाब वालिदैन का नाफरमान। सवाल ऐसा कौन सा दरख्त है जिसे मुसलमान दरख्त कहा जाता है? जवाब खजूर का दरख्त। सवाल हदीस के मुताबिक इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या है? जवाब कुरान की तिलावत करना। सवाल किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? जवाब मस्जिद निमरा। सवाल कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? जवाब खुद अल्लाह ताला ने। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है? जवाब नफिल नमाज। नफिल नमाज घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला था? जवाब 25 साल की उम्र में। सवाल वो कौन सा जानवर है जिसे जन्नत की दोस्त कहा जाता है? जवाब बिल्ली को। सवाल ख्वाब में कौन सा जानवर देखना दुश्मन का इशारा है? जवाब सांप को देखना। सवाल वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? जवाब जोड़ों का दर्द। सवाल दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब सूरह अलम नशरा। सवाल नमाज के दौरान जिमाई आना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब नमाज के दौरान या कुरान पाक पढ़ते हुए सुस्ती और फरहबी की अलामत है। अच्छे काम करते हुए नजर बद की अलामत भी हो सकता है, लिहाजा हर वक्त सदका देते रहा करे और इस्तिगफार को अपना मामूल बना ले। सवाल वो क्या है जिसे खाना और खिलाने वाला दोनों लानती हैं? जवाब सूद। सवाल किस मखलूक के असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब शैतान की वजह से। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब गीबत करना। सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से काला हो जाता है? जवाब दिल। सवाल क्या चीज खाने वाले की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं? जवाब हराम का लुकमा खाना। सवाल ऊंचाई चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? जवाब अल्लाहु अकबर। सवाल हदीस के मुताबिक इंसान किस तरह सोने से बीमार होता है? जवाब पेट के बल सोना। सवाल हदीस में औरत का जेवर किस चीज को कहा गया है? जवाब हया को। सवाल दुनिया में नशा करने वालों को अल्लाह ताला उनको दोज़ख में क्या पिलाएगा? जवाब दोज़खियों का पसीना।